मीडिया के संबंध में गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और ओटीटी के बारे में कोड ऑफ एथिक्स, इसको लेकर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये आपको हम बता दें कि जो सोशल मीडिया है, बाकी इंटरमीडियरी है, उसके संबंध में जो हमने गाइडलाइन बनाई है नई, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब डिजिटल मीडिया और ओटीटी के बारे में आईटी एक्ट के अंतर्गत ही हम लोगों ने वो एडमिनिस्ट्रेशन आईएनबी को सौंपा है। तो आईएनबी के द्वारा जो फाइनलाइज किया है, चर्चा करके बाद वो उस रूल के बारे में प्रकाश जी बताएंगे। लेट मी फर्स्ट ले डाउन द ग्राउंड रूल वेरी क्लियरली। सोशल मीडिया इज वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया. They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users, and they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें। आपका स्वागत है। The government welcomes criticism and the right to dissent. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़. YouTube users are 44.8 crores. Facebook users are 41 crore. Instagram users are 21 crore. And Twitter users are 1.75 crores. This is a good number. We are very happy about it. Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. हमारी मिनिस्ट्री ने व्यापक कंसल्टेशन किया. We prepared a draft on 24th of December 2018, where we received 171 comments. We put those comments in public domain, and we had 80 counter comments too. Therefore, widespread consultations was done, and also in the case of INB, which will be explained by them. अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं. बाकी तो rules आपके सामने आएगा, प्रेस स्टेटमेंट भी है. पहला है कि दो कैटेगरी की है. एक है intermediary, which can be a social media intermediary, और दूसरा है significant social media intermediary. Significant social media intermediary पर additional obligation है. There are additional obligations on a significant social media intermediary. We shall notify the users number for a significant social media intermediary very soon. Who will be those? पहला है कि आपको एक grievance redressal mechanism रखना पड़ेगा. And इस grievance officer का नाम भी आपको रखना पड़ेगा. Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने अनाउंसमेंट कर दी है कि इन लॉज को 3 महीने बाद इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. और लॉज क्या है? कानून उन्होंने ये बनाया है कि अब
जो भी चीज़ें वायरल होंगी जो कि समाज के खिलाफ होंगी या सरकार के खिलाफ होंगी या इलीगल कोई भी कंटेंट पड़ा रहेगा सोशल मीडिया पे, अब वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इसकी ऑरिजिनेटर होंगे। यानी कि पहली बार उसे शेयर किसने किया था इंडिया के अंदर, अगर वो बाहर से कंटेंट आया तो इंडिया के अंदर उसको सबसे पहले शेयर किसने किया, या फिर शेयर इंडिया के अंदर ही वो इवॉल्व हुआ है तो उसको पहला शेयर किसने किया था। ये चीज़ें जिस साइट्स पे आप करेंगे या जिस सोशल मीडिया पे आप करेंगे उनको सरकार को ये जानकारी देनी पड़ेगी। और अब सोशल मीडिया के लिए एक अलग टीम रखी जाएगी जिसमें कि वो यही चीज़ें सर्वे होगा कि उसमें किस तरीके का लोग कंटेंट डाल रहे हैं, कहीं वो इलीगल तो नहीं है। अगर वो इलीगल निकलता है तो उस पर ऑरिजिनेटर के खिलाफ यानी शेयर करने वाले खिलाफ की कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई लगभग उसे उसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है। किसी भी तरह का इलीगल कंटेंट सेक्सुअली हो सकता है या कोई भी, ये सरकार ने कहीं ना कहीं मुद्दा जब सामने उठाया है, क्योंकि अभी सबको पता है कि टूल किट वाला मामला, जिसमें कि टूल किट नाम का एक इस तरीके का दस्तावेज बनाया गया था जो कि खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, उसी की बात से उसकी ओरिजिनेटर यानी क्रिएटर को ग्रेटा को फिर उसके बाद जेल भी हुई थी, उसके पूछताछ हुई, कड़ी कार्रवाई हुई थी, लेकिन अभी उनको उसको बेल पे बाहर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मामला चल रहा है। और अब सरकार नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई भी और कैंपेन आगे बढ़े या कोई भी इलीगल कंटेंट सोशल मीडिया के थ्रू शेयर हो या वायरल हो, क्योंकि सरकार भी अब ये चीज़ समझ गई है कि सोशल मीडिया कितना बड़ा एक हथियार है चीज़ों को शेयर करने का, कोई भी मूवमेंट खड़ा करने के लिए। अब हाल फिलहाल देखा यही जा रहा है कि जितने मूवमेंट हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे उनका एक अलग कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके बाद ही वो जाके फिज़िकली सक्सेस हो पा रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है कैंपेन को आगे बढ़ाने में, चाहे वो पॉलिटिकल कैंपेन हो या वो इलीगल कोई कैंपेन हो जो सरकार के खिलाफ हो या देश के खिलाफ हो। और इस तरह के कंटेंट को सोशल मीडिया को पूरा राइट है उसको कंटेंट को डिलीट करने का और उसकी वजह बताने का कि वो वजह क्यों है, क्यों डिलीट किया गया आपका कंटेंट, और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। हर महीने में अब सरकार को ये जानकारी देनी पड़ेगी उनके पास कितनी कंप्लेंट्स आई और उन कंप्लेंट्स का उन्होंने एक्शन क्या लिया, यानी कि एक महीने में उनके खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स आती हैं और एक्शन कितने लिए गए। 15 दिन के अंदर कोई भी कंप्लेंट का उन्हें सोल्यूशन निकाल के देना पड़ेगा। अगर वो किसी वुमेन की कंप्लेंट है तो 24 घंटे के अंदर उसका एक्शन लेना पड़ेगा और सोल्यूशन निकाल के देना पड़ेगा। किसी भी तरह की हैरेसमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या कोई भी न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी अब से सोशल मीडिया पे इस कानून को अप्लाई होने के बाद करना उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा जो इस तरह के काम अभी तक करते आए हैं, क्योंकि अब वो बच्चे नहीं जाएंगे। अब उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का सरकार ने प्रबंध कर रखा है। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने साफ साफ कह दिया कि सोशल मीडिया कंपनीज आए भारत में, पैसा कमाएं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, खूब पैसा कमाओ, खूब आओ भारत में, वेलकम है सबके लिए, लेकिन कोई भी इलीगल एक्टिविटी सोशल मीडिया के थ्रू वायरल नहीं होगी अब से। हालांकि ये हमारे देश के लिए अच्छा भी है। और क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने, आप वो भी सुनिए। Users, particularly women that exploit their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि 2 प्रकार के सोशल मीडिया होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules.
Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड. एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया. Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India, and you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है. उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ. बार बार चीज़ें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में. तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा. दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं. हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा. ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा. I repeat, the social media platforms, upon being asked either by a court order or by the government authority, will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, और रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आपको यह बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी. यस. और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है. आई एक्सप्लेन टू यू. बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा. इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा. सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट. द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ द यूजर्स. क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा. और एक अंतिम बात है कि 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट. अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कर दीजिए. फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए. यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए. और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए.